Good morning, friends. Myself Kedar Budeka, and today I am taking the lecture number 40 of the quality engineering, and we are discussing the chapter number 7 from your GTV syllabus, and most probably these are the last two subtopic will be remains to under the discussions. In the previous series of the lectures, we already discussed the various dimensions of the service quality, characteristics, classifications of the service, and the very basic understandings about the service qualities. So, in today's lectures, we try to discuss the basic things about the how to measure and how to improve the service quality. There are some of the techniques and there are some of the parameters are there for measuring the service qualities or improving the service qualities. So in today's lecture we majorly focusing on the various aspect of measuring the qualities and some of the important topics of improving the service quality. Suppose if you found some of the things which is not performing as per the expectations levels, right? Suppose whenever you are writing with some pen, but that pen is not smoothly written, which is not very helpful to written this written writing with the smoothness. So you probably try to measure what are the basic reasons for that, and after that you try to find out some of the reasons and how to you always try to how to sort out that reasons if your pen is not servicing properly with the quality standards. So likewise we are always try to our mindset which is very in the genre is that we have to measure the quality of the service. So let's start the discussions over the measuring the service quality. So there are the soft and hard measures of the service qualities. So there are the basically two standards, uh, soft standards and the hard standards measures of the service quality. So what is the meaning of the now the soft measures? Not easily observed. Soft matter measures, that means if you are not easily observed, must be collected by टॉकिंग टू द कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ एंड अदर। ऐसी चीज़ें जो आप इजीली ईज़िली उसको ऑब्जर्व करके मेज़र नहीं कर सकते। जहाँ तक सर्विस की ऐसी ऐसी सर्विसेज की बात है जिस सर्विसेज को आप ऑब्जर्व करके उस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं? तो कि ऐसी चीज़ों के लिए आप बेसिकली फोकस करते हैं कि आप कस्टमर के पास जाएंगे, कुछ उसके डेटा कलेक्शंस करेंगे, कस्टमर के साथ बात करेंगे, कस्टमर के रिव्यूज़ जो है आप उनके पास जानने की कोशिश करोगे। आप फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके साथ बात कर उनके एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने की कोशिश करोगे, या फिर ऐसे जो लोग जो इस सर्विस को पहले ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, ऐसे लोगों से आप बात करने की कोशिश करोगे और इस तरीके से इस चीज़ को आप उस चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करोगे तो इस चीज़ को जो है वो एक सॉफ्ट मेजर्स जो है वो सर्विस क्वालिटीज़ के अंदर बोला जाएगा। सो वी हैव प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस, इट इज़ प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस, गाइडेंस एंड फीडबैक्स टू एम्प्लॉयज़। इससे जो है वो एक हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड होता है, एक तरीके का एक फीडबैक से जो है वो एक गाइडेंस प्रोवाइड होता है, और इसी फीडबैक से जो है वो हम जैसे एम्प्लॉय में सपोज द फीडबैक टू द एम्प्लॉय, ये दो तरीके से वर्क कर सकते हैं। हम लोग इस फीडबैक को एम्प्लॉय तक भी पहुंचा सकते हैं इसकी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो फीडबैक हमें एम्प्लॉय से ही मिले हैं तो वो उसको यूज़ करके हम लोग उस डायरेक्शंस के अंदर जो है उस डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं कि जिससे हम लोग एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर सके। इज इट क्लियर?
So it can be quantified by measuring the customer perceptions and the belief. तो बेसिकली अगर मुझे उन छोटे शब्दों में या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये जो है वो एक तरीके से इस चीज़ को अगर मुझे क्वांटिफाई करना है तो हम लोग इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो कि एक मेज़र करने का एक मेथड ये हो सकता है कि एक हम लोग जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द कस्टमर्स परसेप्शंस एंड द व्हाट इज़ द कस्टमर्स बिलीफ, राइट। कस्टमर के क्या परसेप्शंस हैं इसके बारे में और कस्टमर की बिलीफ क्या है, अगर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं उस सर्विस के बारे में तो उस चीज़ को सॉफ्ट मेज़र के तौर पे गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल द SOUQL, then the surveys, then the customer advice panels, these are the example। तो ये सर्क्यूल जो है वो एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्निक है जिसके अंदर से जिसको यूज़ करके जो है वो हमने ये कल जो डायमेंशंस वाले जो 5 डायमेंशंस को स्टडी कर लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था उस डायमेंशंस वाले लेक्चर्स के अंदर इस सर्क्यूल जो है उसके बारे में एक ऐसा जो टेक्निक है, ऐसा जो मैथडोलॉजी डेवलप किया गया है उसके बारे में मैंने एक स्टडी का जो एक पेपर आपके साथ शेयर किया था। वो चीज़ के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। फिर डिफरेंट सर्वेज हो सकते हैं, फिर कस्टमर के परसेप्शंस हो सकते हैं, उसकी बिलीफ हो सकते हैं और कस्टमर की एडवाइजरी पैनल को यूज़ करके जो है ये इसके इस तरीके के सॉफ्ट मेजर के जो है वो एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब दूसरा एक पैरामीटर हो सकता है दैट इज़ दी हार्ड मेज़र। अब हार्ड मेज़र के अगर उसके बारे में मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँ तो इट शुड बी काउंटेड, इट्स कैन बी काउंटेड। अगर ऐसी चीज़ें जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप नाप सकते, जैसे टाइम कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, विच इज़ दी टफ इन दी ऑडिट्स, थ्रू दी ऑडिट्स, राइट। सो हार्ड मेज़र के अंदर ऐसी चीज़ों जिसको आप गिन सकते हैं, जिसके आप उनका समय को गिन सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं थ्रू दी ऑडिट्स। आप ऑडिट को जो है वो यूज़ करके इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हार्ड मेज़र्स के अंदर जो है वो गिना जाएगा। सो द हार्ड मेज़र इज़ मे बी इट्स कैन बी काउंटेड एज ए, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम टाइम कर सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं थ्रू दी ऑडिट। जिसको ऑडिट के साथ मेज़र किया जाएगा वो सभी मेजर्स को जो है ऐसी सर्विस क्वालिटीज़ को मेज़र करने की टेक्निक्स को हार्ड मेज़र टेक्निक जो है वो बोला जाएगा। टिपिकली ऑपरेशनल प्रोसेसेस और द आउटकम्स, ऐसे टिपिकल जो भी ऑपरेशन प्रोसेसेस रहती है और प्रोसेसेस के जो आउटपुट्स रहते हैं वो सभी जो है वो जिनको हम एक तरीके से मेज़र कर सकते हैं, एक तरीके से टाइम कर सकते हैं, कैसा आउटपुट मिला, किस टाइम पे मिला, उनको गिन सकते हैं, उनको क्वांटिफाइड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, प्रोसेसेस और उसके आउटकम को हार्ड मेज़र के तौर पे गिन सकते हैं। The standards are often set with the references to the percentage of occasions on which a particular measure is to be achieved। जो भी इनके स्टैंडर्ड्स है विच इज़ ऑफ्टन सेट्स विद दी रेफरेंस टू दी परसेंटेज, ये हमेशा जो इनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो एक ऑफ्टन इस एक रेफरेंस परसेंटेज के साथ जो है वो सेट किए जाते हैं ऑन दी ओकेशंस ऑन विच अ पर्टिकुलर मेजर इज़ टू बी अचीव्ड। और आपको जो अचीव हो रहा है उस पर्टिकुलर के साथ उसको मेज़र किया जाएगा। एक स्टैंडर्ड जो लेवल एक सेट किया गया है और उस ओकेशंस के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर आप उसको अपने अपने स्टेज के ऊपर उस स्टैंडर्ड्स को साथ कंपेयर करके, मेज़र करके उस चीज़ को आप बता सकते हो, माप सकते हो। तो कंट्रोल चार्ट्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। और अगर आपको टाइम के साथ किसी चीज़ का परफॉर्मेंस आपको बताना है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर
ऐसी कंडीशंस के अंदर आप कंट्रोल चार्ट के यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे एक टाइम के साथ उस चीज़ के परफॉर्मेंस को, उस सर्विस के परफॉर्मेंस को एक आप चार्ट के फॉर्म में आप डिस्प्ले कर सकते हो, विच इज़ अगेंस्ट दी स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जो है वो बनाया गया है. So the control charts are useful for displaying the performance over the time against a specific quality standards. So here the compositions of the FedEx Service Quality Index, which is SQI. So here you can see that the failure types जो है इनको categorize किया गया है, which is the weighted factors and the number of incidents and which is the daily point. उसके हिसाब से एक points जो है वो total points जो है SQI के आप measure कर सकते हो. So the late delivery and right day, आपके पास अगर ये FedEx जो है वो एक US का एक जैसे एक डिलीवरी सिस्टम है, जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर ब्लू डार्ट है ना, वैसे ये FedEx जो है यहाँ पे भी अब मौजूद है इंडिया के अंदर, पर वो बेसिकली जो है वो FedEx है USA का. तो इन्होंने अपनी क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो है वो एक सिस्टम बनाया है सर्विस क्वालिटी इंडेक्स का. वो कैसे मेज़र करते हैं, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको डिस्प्ले किया गया है. अगर आप लेट डिलीवरी करते हो पर डेम से है, आपने किसी भी ऑर्डर की डिलीवरी करेगा होगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 10 तारीख को देना है, 10 तारीख को इतने बजे आपको ये जो है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा. फिर 10 तारीख है पर आप उसको 10 बजे की जगह दोपहर को 2 बजे डिलीवर कर रहे हो, तो उसका जो है वो वेटिंग फैक्टर्स जो है वो 1 है. नाउ लेट डिलीवरी ऑन रॉन्ग डे, 10 तारीख का बताया था और 10 बजे बताया था, उसकी बजाय आप 11 तारीख को दे रहे हो, 11 बजे दे रहे हो, तो उसके आपका वेटिंग पॉइंट हो जाएंगे फैक्टर्स उसका 5. देन द ट्रेसिंग रिक्वेस्ट विच इज़ अनआंसर्ड, जब आप उसको ट्रेस करते हो कहाँ तक पहुँचा, और अगर कोई आंसर नहीं मिलता है तो उसका एक फैक्टर्स जो है वो काउंट होगा. देन द कंप्लेंट विच इज़ दी रीओपन्स, अगर एक कंप्लेन आपने की है, उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, फिर वो आपने फिर से कंप्लेन की और रीओपन होती है, तो उसके 5 पॉइंट काउंट किए हैं. फिर द मिसिंग प्रूफ. तो इस तरीके से उनको जो है उन्होंने अपनी डिलीवरी सर्विस के हिसाब से कुछ ऐसे फेलियर टाइप्स जो वो लोग ने पहले ऑब्जर्व किए होंगे उस हिसाब से उनको बताया है. तो वो पर डे के हिसाब से जो है वो उसके डेली पॉइंट्स जो है वो ऐसे कंसिडर करते हैं कि जैसे लास्ट लेट डिलीवरी और राइट डे पे कितनी ऐसी चीज़ें बनी. तो सपोज़ कि ऐसी चीज़ें बनती है, उसका वेटिंग फैक्टर 1 है, और ऐसा आज के दिन में डे सेम था पर डिलीवरी थोड़ी टाइम के बाद हुई है, तो ऐसी 20 घटनाएं हुई हैं. तो 20 × 1 विच इज़ द डेली पॉइंट विच इज़ 21 पॉइंट जो है इस चीज़ के टोटल डेली पॉइंट्स बन जाते हैं. तो इस हिसाब से पूरा जो है वो उसका टोटल फेलियर पॉइंट्स SQI जो है वो सर्विस क्वालिटी इंडेक्स उन्होंने बनाया, और इस हिसाब से वो पूरा उसका सर्विस क्वालिटी को जो है वो मेज़र करते रहते. वो पूरे ऐसे, ये तो हमने डेली के हिसाब से बनाए, फिर वो हर एक शीट जो है वो बनती जाएगी डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली, और मंथली के हिसाब से उसका एक परफॉर्मेंस जो है वो मेज़र्स होगा. उस परफॉर्मेंस मेज़र के ऊपर जो है वो सर्विस क्वालिटी इंडेक्स के अंदर किस कैटेगरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपने पार्सल मिस द पिकअप्स एंड मिस द पार्सल्स, लॉस द पैकेजेस, ऐसी बड़ी बड़ी कंप्लेन कैसी आ रही, तो वो अपने खुद का जो है वो एक इंटरनल एक रिव्यू सिस्टम जो है वो करते रहते हैं. तो ये सारी चीज़ जो है वो हार्ड मेज़र्स के अंदर आती है. आप उसको मेज़र कर सकते हो, क्वांटिफाइड कर सकते हो, गिन सकते हो. तो ऐसी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे आपके सामने ये उपलब्ध है. और इस चीज़ को कंट्रोल चार्ट के अंदर जो है वो भी आप कंट्रोल चार्ट के साथ इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. कंट्रोल चार्ट फॉर द डिपार्चर्स डिले, अगर कुछ चीज़ डिपार्चर ही डिले होती है, द फ्लाइट विच इज़ डिपार्चिंग विद इन द 15 मिनट्स ऑफ द शेड्यूल्स, राइट. तो वो मंथ में जो है वो
कितने टाइम जो है उसका डिपार्चर जो है वो 15 मिनट्स से ज़्यादा लेट होती है, तो ऐसे 65% के चांसेस है पहले दिन पे, ऐसे चांसेस थे। पर आप वो कंपेरेटिवली जो देखते जाओगे तो वो 15 मिनट लेट वाले शेड्यूल्स जो है वो डेली कितने बनते हैं, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको मेज़र करके एक कंट्रोल चार्ट विच इज़ टाइम वर्सेस जो है वो आपको प्लॉट करके दिया है। ऐसी घटनाएं कितने परसेंटेज में बनती हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो कंट्रोल चार्ट का भी यूज़ आप एक तरीके से यहाँ पे इस चीज़ के अंदर कर सकते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिससे आप जो है इस तरीके को मेज़र कर सकते हो। द टूल टू एनालाइज एंड एड्रेसेस द सर्विस क्वालिटी प्रॉब्लम्स। कौन कौन से टूल्स जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, एड्रेस दी सर्विस क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ऐसे सर्विस क्वालिटी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा फिशबोन डायग्राम। It is also known as a cause and effect diagrams to identify the potential causes of the problems. तो इसको एक तरीके से cause and effect diagram भी बोला जाता है, जिससे एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पोटेंशियल causes क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम के फेल होने का। Then the second which is the Pareto charts. अब Pareto charts क्या चीज़ है? So it is separating the trivial from the importance. Often a majority of the problem is caused by a minority of the cases. So the Pareto charts के अंदर जो है which is वो डिपेंड करता है 80-20 रूल्स के ऊपर. So the separating the trivials from the importance. Often a majority problem is caused by the minorities of the causes. जो majorities of the problems जो है वो जनरेट होते हैं, वो एक तरीके से माइनॉरिटी कोजेस के साथ ही जनरेट होते हैं। तो ये चीज़, इसको मैं आपको अपने और आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो जो भी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो पैरेटोग्राम से आप एनालिसिस करोगे तो ये चीज़ निकल के आती है कि इसके पीछे के रीज़न बहुत छोटे छोटे रीजन्स हो सकते हैं। एंड द ब्लूप्रिंट्स, सो द विजुअलाइजेशंस ऑफ द सर्विस डिलीवरी, identifying the points where the failures are most likely to occur. इससे जो है वो ब्लूप्रिंट से आप विजुलाइज कर सकते हो सर्विस की डिलीवरीज को। आप आइडेंटिफाइज ऐसे पॉइंट्स कर सकते हो कि जहाँ पे फेलियर आर मोस्ट लाइकली टू अकर, जहाँ पे फेलियर होने के सबसे ज़्यादा तरीके के चांसेस हैं, राइट। सो द टूल्स टू एनालाइज जो टूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं टू एनालाइज एंड एड्रेसेस द सर्विस क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें टूल्स के अंदर जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM है। देन द ISO 9000 इज ऑल्सो यूज एज ए टू एनालाइज एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू द सर्विस क्वालिटी। सो ISO 9000 विच इज़ comprises the requirements, definitions, guidelines and rated standards to provide an independent assessments and the certifications of the firms of the quality management systems। तो यहाँ से इसको यूज़ करके जो है वो आप ISO 9000 की मदद से जो है वो आप एक कंप्राइजेस रिक्वायरमेंट्स को आपके बारे में पता चल सकते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या, उसकी गाइडलाइंस आपको उसको फॉलो करना चाहिए, विच इज़ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। यू कैन ऑल्सो सी द रिलेटेड स्टैंडर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी प्रोडक्ट। then the independent assessments and the certifications of the firms which is related to the quality management systems. Then the next tool which is regarding the Malcolm Baldrige models which is applied to the service. ये जो क्वालिटी एक अवार्ड जो है वो सर्विसेज जो है माल्कम बेल्ड्रिज मॉडल्स जो है वो आप यहाँ पे सर्विस क्वालिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज टू प्रमोट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन रिकॉग्नाइजिंग एंड
publicizing the quality achievements among the US firms. एंड आप उसको क्वालिटी मैनेजमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ करके, इसको पब्लिशिंग्स करके और इसको अचीव करके यूएस फिल्म्स के अंदर यूज़ हो सकता है. देन द लास्ट विच इज़ अबाउट द सिक्स सिग्मा. तो सिक्स सिग्मा विच इज़ वन ऑफ द statistical tools, only with using the Six Sigma, only the 3.4% of the defect which is generated the per million opportunities, right, has involved from a defect reduction approach. ये जो है वो एक defect reduction approaches के साथ जो है इसको लाया गया था to an overall business improvement approach, जिससे एक overall business improvement approach जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो एक तरीके से डेवलप्ड हो सके. तो ये जो टूल्स हैं इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो आज हमने लेक्चर्स के अंदर किस तरीके के तरीके को यूज़ करके जो है हम उस सर्विस क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं. तो मेज़र करने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, हार्ड मेजर्स और द सॉफ्ट मेजर्स, राइट. और उसको उस प्रॉब्लम को, जो क्वालिटी प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज और एड्रेस कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया. कल लेक्चर्स के अंदर ये सारे टेक्निक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. अगर आज के लेक्चर्स के अंदर आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर. ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.